So just give me a minute. Okay. Okay, should I start? Yeah, sure. So in the points from 4.21 to 4.28, they are talking about integrating the curriculum, and they have talked about the different ways that it can be done. It should be done. Integrating the curriculum to the physical environment around them, and the languages and the traditional methods of teaching. So they have suggested taking stories from the Indian culture, different types of stories, and also having hands-on experience with the vocational activities like carpentry and pottery, gardening, agriculture, and things like that. So they have also talked about 10 days backless period where they will get to interact with specialists in this field. They will be taken to field visits, and this period can be during the summer vacation, or if it is possible during the regular sessions, any 10 days in the year. Then they have talked about knowledge of India. So to have a better knowledge of India, to keep the curriculum rooted to the Indian culture, they have asked to have a better knowledge of India, for which they have included stories and basic training in the traditional methods. So yeah, that's about it in this part. I think we can move ahead. Okay, there were a few points that just came into view for me, which I think we didn't discuss too much in detail yesterday. There were things like ethical reasoning, scientific temper, and what was it? Evidence-based thinking. So these three terminologies, ये बहुत easily understood नहीं होती है, because these are environments where not many people get the opportunity to interact extensively. Like for example, scientific temper. तो साइंटिफिक टेम्पर में रिसर्च मेंटालिटी जो होती है, वो रिसर्च मेंटालिटी इतने आसानी से लोगों को इट इज नॉट इंट्यूटिव टू देम, यू नो कि हम लोग अगर इस तरह से सोचेंगे तो इस चीज का रिसर्च बेस्ड प्रोग्रेस होगा. So like for example, what we are doing right now, that is like a semi-research based study, so that आगे जाके हम लोग जो भी इनिशिएटिव्स लेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, उसके इफेक्ट्स और इम्पैक्ट कैसे होंगे ये हम लोग को देखने मिलेंगे. But if we have to make it completely research based, so then we'll need a written record of everything कि हम लोग क्या practices कर रहे हैं, how much of it is being reflected, and उसके basis पे किस तरह से लोग उस पर respond कर रहे हैं, लोग मतलब the children, the teachers and the parents, and फिर बाद में उसका जो observed impact था and जो predicted या calculated impact था, वो match हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड उसके बेसिस पे हम लोग को नेक्स्ट स्टेप्स, नेक्स्ट चेंजेस क्या उठाने हैं. तो दिस कुड मेक इट अ रिसर्च बेस्ड एक्शन. तो उसी तरह से साइंटिफिक टेम्पर में साइंटिफिक टेम्पर हर जगह कैसे डेवलप करना, क्योंकि ये जो पूरा साइकिल है, ये साइकिल में दो चीजें बहुत नेसेसरी है. वन, कि देयर शुड बी अ कंप्लीट लैक ऑफ ईगो. क्या रे, हाउ आर वी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, हम लोगों के ऊपर कुछ भी ट्राई कर रहे हैं,
तो ये दिस इज ईगो, ये अगर होता है तो देन प्रोग्रेस नहीं होगा। इसके लिए द फर्स्ट पार्ट इज टू बी इन दैट सीट के हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। सो दैट इज साइंटिफिक टेम्पर एंड the second aspect of this is deep observation कि आप उसे इस तरह से और इतने डेप्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके आंखों से, आपके नजर से, आपके सेंसेस से एंड इंट्यूशन से कुछ भी नहीं छूट रहा है, पूरा डेप्थ से ऑब्जर्व करना है, taking into consideration the child's personality, taking into consideration our inclinations के हम लोग as teachers क्या काफी बार नजरअंदाज कर जाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि I don't miss out on this. So all this will come under scientific temper. फिर दूसरा जो है evidence based thinking. Evidence based thinking is a form of critical thinking. एक तरीका है critical thinking का। तो critical thinking के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस लिए थे, especially with the primary teachers about how critical thinking works exactly. तो उसमें what is the statement, what is the statement that is being provided, उसका justification क्या है, and whether that justification matches that claim, that statement or the claim. Okay, suppose for example if I say Tulsi is a better alternative to paracetamol for fever and diseases because it is plant based. So first of all claim क्या है, तो claim is this कि तुलसी is the better medicine than paracetamol. Then उसमें second claim the justification is because it is plant based है इसलिए it is better, but then does it prove it correct? Because is it necessary that anything plant based is always better than allopathic? तो ऐसे इस तरह से किसी चीज पे अगर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं हम लोग, तो then we come to know, we are able to separate knowledge from gossip. We are able to separate productive information from just उड़ता हुआ information. Like for example, काफी बार ऐसा होता है कि we come across pieces of news WhatsApp पे, Facebook पे, and we end up reacting. Right now our social structure is such कि हम लोग दिन में 10 बार उन चीजों पर रिएक्ट करते हैं जिनका हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जिनका आपको कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट ही नहीं है। तो this is the environment that the children are growing up today, growing in today, and यही चीज आगे बढ़कर आगे बढ़ेगी, बेसिकली कम नहीं होगी। So इसे अगर हम लोग intelligently in a focused manner, if the children are sharp enough to be able to understand whether some piece of information is just gossip or is it actual knowledge, is it reasonable, is it justified, so ये सब चीजें बच्चों को करते आनी चाहिए। तो लॉजिक, कॉमन सेंस, ये सब चीजों पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस पर। So 4.34, right? Okay, good afternoon everyone. हमारा आगे का पॉइंट है 4.34 और इस पॉइंट में बताया गया है कि अभी तक जो बच्चों को जांचा जाता था, उनकी जो भी पढ़ने की क्षमता को, उसको मतलब बच्चों के जो रटने की क्षमता है उस पर उसको जांचा जाता था। मतलब जैसे बच्चा 4 महीने पढ़ाई करेगा और उसके बाद उसका 3 घंटे का एग्जाम होगा, तो उस 3 घंटे में पता लगाया जाएगा कि इसकी मेमोरी कितनी है, इसने कितना याद रखा। उस 3 घंटे में उसके 4 महीनों का पूरा आकलन किया जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि हमें बच्चों का आकलन जो है उसकी रोजमर्रा की जो भी उसकी क्रिएटिविटी है, उसके जो छोटे छोटे काम है उस पर निर्भर करना चाहिए उसका आकलन। जैसे एग्जाम्पल के अगर हम देखा जाए कि कोई बच्चा अगर 4 महीने उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और जो 3 घंटे का पेपर है, अगर किसी भी कारण या किसी भी वजह से अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, वो किसी टेंशन में रहा, किसी डिप्रेशन में रहा, अगर वो 3 घंटे का पेपर अच्छे से नहीं दे पाया, तो
मतलब Right. रिजल्ट में आएगा लाइक फिगर लाइक या बट वो इंटेलिजेंट है वो हमें पता है, बट वो 3 घंटे के आधार पर उसके पूरे 4 महीने की मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो सीखने के लिए होना चाहिए और ये स्कूल, टीचर्स और जो स्टूडेंट है तीनों के लिए फायदेमंद रहेगा। सो इसमें अगेन दे हैव मेंशन एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये जो है एनसीईआरटी हैज ट्राइड इवन इन द पास्ट एंड इवन इन द करंट टेक्स्ट बुक्स के उनके एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के खुद के बुक्स है उसमें थोड़े से क्वेश्चंस अलग हो। जो कल भी हम लोग डिस्कशन ले रहे थे कि द क्वेश्चंस शुड बी more self oriented, the questions should be more depth driven, मतलब उसमें सोचने वाली चीजें ज्यादा रहनी चाहिए। तो वो अभी फोरफ्रंट पे लाया गया है। पहले इट यूज्ड टू बी समथिंग लाइक आई थिंक 20-80 का रेशियो अप्रोक्सीमेटली रहता था कि 20% ऐसे क्वेश्चंस रहते थे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गए या फिर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस हो गए, एंड 80% ऐसे क्वेश्चंस रहते थे जो लेसन या टेक्स्ट बुक बेस्ड है। सो नाउ they will change that ratio and they will try to make it more critical thinking based, conceptual clarity based, and analytical. Besides this, the difference between summative and formative. तो summative मतलब जो दो इसको ये है मीनिंग्स है, वन इज समरी एंड द अदर इज समेशन। ये जो पूरे साल भर का जो समेशन है, ये भी ऐड हुआ वो भी ऐड हुआ, सब कुछ टोटल लेके आखिरी एग्जाम में इतने चीजों का एग्जाम ले लेना है। एंड जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव मतलब एग्जाम ऐसी होगी कि ये क्वेश्चंस आंसर करते करते बच्चों का नॉलेज बिल्ड होगा, दैट इज फॉर्मेटिव, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू नॉलेज। तो ये अब के जो असेसमेंट्स रहेंगे, एग्जाम्स रहेंगे, वो समेटिव नहीं रहेंगे, फॉर्मेटिव रहेंगे। और आगे का जो पॉइंट है हमारा 4.35, उसमें बताया गया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में जो प्रोग्रेस कार्ड है वो चेंज किए जाएंगे और उसमें जो भी स्टूडेंट है उनके सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्रों में होने वाले जो भी डेवलपमेंट है उसका बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। और इस प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से जो स्कूल और घर के बीच में एक बहुत ही मजबूत कड़ी, बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक बनेगी, जिससे बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ एक प्रोग्रेस कार्ड को देखकर हम बता सकते हैं। और एक ईआई सॉफ्टवेयर द्वारा बच्चे का स्कूल के वर्षों के दौरान उसका पूरा डेवलपमेंट कितना हुआ है ये भी बताया जा सके। Okay, so this has its pros and cons. Yeah, anybody has a question? Okay, so this has its pros and cons. अगर AI driven, हेलो yes, who's that? Bharat sir. ये जो रिपोर्ट कार्ड का पॉइंट है उसमें समझ में नहीं आ रहा, your voice is not clear. हाँ सर, रिपोर्ट कार्ड का जो पॉइंट आया है अभी शिल्पा मैम ने बताया, तो रिपोर्ट कार्ड्स में क्या नया रहेगा वो थोड़ा सा। हाँ, मैं उसी पे बात करने वाला था। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस है क्या? रिपोर्ट कार्ड का आई विल गेट, मतलब दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट। उसको छोड़ के दूसरे कोई क्वेश्चंस है पहले का? ओके, ओके ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड पे आते हैं। तो एक जो इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है, दैट इज द रिपोर्ट कार्ड, बिकॉज इसमें a lot of companies, e-learning companies are trying to gain advantage. So I am hoping कि जब implement होगा ये NEP, तो उस समय इस पर बहुत ही
केयरफुली सोच समझ के स्टेप्स निर्णय लिए जाएंगे कि वो ई लर्निंग के जो अभी कंसिस्टेंट मार्केटिंग टेक्निक्स है उसके बहकावे पे वो लोग ना जाए, बिकॉज आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स लोग ये जो टर्म्स है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये लोग बहुत मिसयूज करके दे आर गिविंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी चीज को वो लोग एज चाइल्ड सेंटर्ड या फिर होलिस्टिक पोर्ट्रे करके दे आर ट्राइंग टू सेल इट ऑफ एंड उसके वजह से द एक्चुअल मोटिव इज बीइंग लॉस्ट नाउ। अब इसके वजह से जब आगे जाके अगले 4-5 साल में दिखेगा कि अरे ये जो एआई कंपनी ने बेचा होलिस्टिक के नाम पे, वो तो दैट इज नॉट रियली प्रोडक्टिव फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, तो देन वो एआई कंपनी के ऊपर से तो ऑब्वियसली विश्वास उठेगा ही, साथ साथ में ये जो टर्मिनोलॉजीज है होलिस्टिक, चाइल्ड सेंटर्ड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये सब चीजों के ऊपर से भी विश्वास उड़ जाएगा। सो इट विल बी अ डबल ब्लो, बट द प्रॉब्लम इज हाउ इट इज बीइंग इंटरप्रेटेड, नॉट द कंसेप्ट इटसेल्फ। तो होलिस्टिक लर्निंग तो अच्छा है ही, मगर उसको अगर लोग अगर उसे उल्टा समझाएंगे तो ऑब्वियसली उसके वजह से तो डिस्ट्रक्शन भी होगा। सो ये जो रिपोर्ट कार्ड्स है, देयर आर मल्टीपल वेज। वन इज यू हैव अभी जो रिपोर्ट कार्ड्स है उसमें सिर्फ 2-3 नंबर्स रहते हैं, वो नंबर में मार्क्स के हिसाब से देन एवरीथिंग इज डन। वन रिपोर्ट कार्ड इज व्हाट वी डू, दैट इज द ऑब्जर्वेशंस। तो जो एआई कंपनीज है वो लोग ऑब्जर्वेशन भी ऑटोमेटेड दे रहे हैं। इफ यू सी नाउअडेज देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक इवन व्हेन यू राइट जीमेल जीमेल में अगर आप मेल लिखते हैं तो आप लिखते लिखते देख सकते हैं कि काफी बार वो सेंटेंस खुद ही कंप्लीट करता है। सो दिस इज ऑल एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो उसी तरह से देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर जहां पर ऑब्जर्वेशन भी ऑटो मोड पे रहेगा। सो आपका जो रिजल्ट है, जो मार्किंग है, उसके बेसिस पे वो लोग स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे कि ये बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग इतना है, क्रिएटिविटी इतना है, फिर लैंग्वेज स्किल्स इतना है एंड सो ऑन, एंड उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन तैयार होगा अपने आप। सो दिस इज द कंट्रोवर्सी, दिस इज व्हाई इज दिस अ कंट्रोवर्सी, बिकॉज ये जो तुलना करने के जो तरीके हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग कैसे पहचानोगे? हाउ कैन यू पुट इट इन नंबर्स? इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इफ आई हैव टू राइट अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ समथिंग, तो कौन सा व्हाट सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू एनालाइज कि ये इसमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज हुआ है और किस डिग्री तक यूज हुआ है? बट देन since everything is objective, since everything is MCQ based, वो लोग ये जजमेंट करते हैं, बट यू हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग थ्रू द चाइल्ड्स माइंड। बच्चे को अगर मन लगे तो वो ठीक से सॉल्व करेंगे, नहीं लगे तो वो आड़ा टेढ़ा कैसा भी सॉल्व करके निकल जाएंगे, एंड उसकी वजह से आउटपुट अलग निकलेगा, आउटपुट अलग निकलने की वजह से ऑब्जर्वेशंस अलग निकलेंगे। तो थ्रू आउट द प्रोसेस इट हैज that practice has not been successful. So I think the best foot forward for the government at this point of time would be if AI based software is used as a guiding software and not as a predominant result oriented software. So question is good, but if it is dependent on, if it becomes the final authority, so then that will become a bit problematic. But I think इसके implementation के समय उनको काफी inputs मिलेंगे, so it won't be in the wrong hands. उसमें कुछ ना कुछ changes तो आगे definitely आएंगे. Redesigned by, okay. Yeah, any more questions?
these are a few more parameters that they are going to handle: cognitive development, affective development, psychomotor skills. फिर see, this is a way of breaking this deadlock. कि जो हम लोग AI का बोल रहे थे कि AI अगर फाइनल अथॉरिटी रहा तो वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, that could become very destructive. तो एक सेल्फ असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है, एंड प्रोजेक्ट बेस्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है. तो इस ये जो है दिस होल ब्लॉक, दिस होल चंक, दिस विल बैलेंस इट आउट. क्योंकि सेल्फ असेसमेंट में it's not about scoring, it is more about self assessment is a typical kind of formative assessment जहाँ पर the knowledge is formed on the basis of whatever has been asked, and all corrections, all the assessment, the actual evaluation is done on the basis of realization कि आपने जो किया है वो क्या सोच के किया था, and how much of it is in line with the known knowledge. तो critical thinking वगैरह भी उसमें आएगा. And peer assessment, मतलब जो हम लोग काफी बार ऐसा करते हैं कि दूसरे को शीट दे देते हैं, मतलब they exchange the sheets and do the corrections. So that is one kind of peer assessment. Another kind of peer assessment, which very interestingly some schools in America are following, it happens during conflict resolution. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों के बीच में झगड़े होते हैं, they keep fighting and all. तो sometimes when a limit is crossed, first of all, the children themselves should realize that a limit has been crossed. तो वो गेम रोक देते हैं, वो इंटरेक्शन रोक देते हैं, जो भी हो रहा है, गेम खेल रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो रोक देते हैं. And then they have a critical assessment. The children ask the people who are involved in that fight, जो झगड़ रहे हैं, उनको वो सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ. तो then they have to respond in one statement कि what happened. वो ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले उसने मारा इसलिए मैंने मारा, वैसा नहीं, हुआ क्या. So they have to tell their side कि I did this, and then the other person has to say I did this. फिर उसके बाद में then somebody else will ask ऐसा क्यों किया. So then it becomes a discussion. So this is also one kind of peer assessment जहाँ आप ही के लोग आपको कुछ सवाल पूछ रहे हैं and उसको लेके डिस्कशन आगे बढ़ता है. तो अगला पॉइंट है हमारा 4.36. इसमें है कि जो बोर्ड परीक्षा है और एंट्रेंस एग्जाम और जो सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम्स का जो पैटर्न है, जो प्रारूप है, वो इस तरह से बनाया गया है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि उसके लिए हमें ट्यूशन बहुत जरूरी है. और जो ट्यूशन की जो संस्कृति, जो उसकी प्रवृत्ति है, उसमें ऐसा है कि बच्चों की जो सोच का दायरा है उसको थोड़ा सीमित कर दिया जाता है. मतलब उनको जो चुनौतियां मिलनी चाहिए, जितनी चीजें वो कर सकते हैं उतनी कर नहीं पाते, और उनकी सोच को थोड़ा सोच उनकी सीमित हो जाती है. Okay, that is the next point. हाँ ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिर्फ एक चीज है कि इसमें जो प्रीवियस इसमें लिखा है कि दे हैव अगेन इन दिस पॉइंट स्ट्रेस्ड ऑन द पेरेंट टीचर चाइल्ड पार्टनरशिप कि ये पार्टनरशिप बनी रहे, एंड प्रोग्रेस कार्ड वगैरह में भी ये पॉइंट्स रहेंगे कि किस तरह से टीचर्स एंड पेरेंट्स मिलकर इस लर्निंग के जर्नी को सपोर्ट कर सकते हैं of holistic education and development. उसमें डे 1 से ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्वेशन में मतलब जब फर्स्ट डे जब बच्चा आता है उस दिन से ऑब्जर्व कर, मतलब हम इस प्ले ग्रुप में करते थे कि फर्स्ट डे अगर बच्चा आता है तो वो कैसा है, और बाद में फिर आफ्टर दिवाली जब सम मंथ्स जाते हैं तो उसमें क्या मतलब उसने क्या ये किया है, उसमें क्या डेवलपमेंट है, वो आया था तब कैसे था. तो वो फर्स्ट डे से ऑब्जर्व करने के बाद
फिर रिपोर्ट फाइल तैयार होने तक ऑब्जर्वेशन में रहता है। हाँ, सो जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा उसमें डे 1 से लेके टिल द टाइम द रिपोर्ट इज मेड पूरा सब कुछ इंक्लूड होगा, नॉट जस्ट द एग्जाम्स। There is one more point in this. Replacing valuable time to learning. हाँ, ये जो they are referring to the notes वाला जो culture है, learn a very narrow band of material, मतलब जो लोगों को सिर्फ इतना अगर उन लोगों ने रट लिया पढ़ लिया तो then they will pass the exam, तो वो वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। कोचिंग क्लास इसीलिए ज्वाइन कराते हैं ना कि उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, तो देन आपका एग्जाम पास हो जाएगा। दैट इज व्हाई यू हैव सो मेनी पीपल। कट ऑफ का सिस्टम इसलिए तो इतना हाई हो गया है, CAT वगैरह में यू हैव पीपल स्कोरिंग 100% एंड देयर आर कट ऑफ्स दैट आर गोइंग अप टू 99%। ये 99% से कम मिला आपको तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल, तो वो सिस्टम वो लोग एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 4.37। इसमें बोर्ड और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी जो मौजूदा प्रणाली है उसमें सुधार किया जाएगा ताकि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत महसूस ना हो। वो इतने फ्लेक्सिबल या इतने मतलब उनको थोड़ा इजी किया जाएगा ताकि बच्चे ट्यूशन ना जाए, उन्हें जरूरत ही ना लगे। और अभी जो भी बोर्ड की जो भी मूल्यांकन प्रणाली है उसे फिर से रीडिजाइन किया जाएगा और बच्चों के पूरे डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कोचिंग और रटने के बजाय उनमें जो भी क्वालिटीज और जो भी उनकी कैपेबिलिटी है उसको और बढ़ाया जाएगा। इस तरह से बोर्ड की परीक्षाएं रिस्क फैक्टर को कम करेंगी। और इसमें 2 बोर्ड की परीक्षाओं को कुछ पॉइंट है मुझे क्लियर है। तो उनका और एक बोर्ड एग्जाम्स का भी शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि साल में 2 बोर्ड एग्जाम ली जाएगी। तो वो बोर्ड एग्जाम जो है वो किस तरह से ली जाएगी वो बच्चों के ऊपर है। अगर कोई बच्चा चाहे कि फुल फ्लेजेडली पहली बोर्ड एग्जाम दे दी फिर दूसरी भी दे दी, तो दैट इज वन वे। द अदर इज के आप पहले बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए दो और दूसरी बोर्ड एग्जाम पढ़ के दो, या जो भी है वैसे। या फिर अगर कोई पहली बोर्ड एग्जाम बहुत मेहनत करके दे देता है एंड वो नहीं क्लियर होती है या फिर उतने प्रोफिशिएंसी से नहीं होती है, तो देन दे कैन डू द सेकंड बोर्ड एग्जाम टू इंक्रीज द स्कोर। तो ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी बोर्ड एग्जाम में भी। एंड या सो द मेन पॉइंट हियर इज अबाउट कोर कॉम्पिटेंसी एंड द खुद का जो नॉलेज है। Okay, any questions so far? I did not get this for exam or price. Yes, why is this 2 board exams? See, if you read the statement to further eliminate the high stakes aspect of board exams. High stake aspects मतलब एक बार साल में एग्जाम होगी, अगर आप पास हुए तो आप पास हुए, अगर आप ना पास हुए तो ना पास हुए। That's it. That is a full stop. उसका दूसरा कोई ये नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, it increases suicide rate. It's one of the side effects. जिनका suicide rate नहीं इंक्रीज हुआ उनके लिए the rest of the life is a stress. जो बच गए वो भी पछताएंगे, जो गए वो भी गए। You have to do the whole thing. 9 हाँ, सिर्फ 10 वापस नहीं दे सकते आप। You have to register for 9 and then do 10. नहीं, but you also tell me कि in this current situation जहाँ पर आपको आपके पूरे स्कूल कॉलेज दोनों मिला के जो आपको आपका ये होता है क्या बोलते हैं ट्रेनिंग होता है, उसमें से less than 5% of it is utilized in the job that you do.
no matter which company you are working for, no matter which academic institute you are working for, आप अगर उसी डिपार्टमेंट में, अगर उसी यूनिवर्सिटी के उसी डिपार्टमेंट में, उसी फील्ड में अगर आप पीएचडी कर रहे होंगे ना, तो भी you don't use more than 5% of what you have studied of the entire MSc. तो ऐसे सिचुएशन में आप 2 साल वापस बिगाड़ेंगे जस्ट टू पास एन एग्जाम. Okay, but we were discussing the topic was there. Now in that part came. हाँ. If they are doing this thing here, then why not earlier? What 35% वाला we were discussing. पहले ऐसा था सिस्टम. जब तक the child is not gaining 35% or 35 marks in a subject, he was not supposed to go in another class. Like whatever class he is, first or second or third. So that was, I thought it was good because the child or anybody need to have a clarity about a particular concept. We stop that thing. The child is going ahead, and we are not taking care of it. The child has been cleared those or concepts or not, and there are so many concepts piled up. And think about this कि जो पहले वाला जो सिचुएशन था, you have also gone through that schooling process. I have also gone through that schooling process. Pretty much all of us have gone through that schooling process. उसके वजह से आपके concepts आज क्लियर है क्या? तो then what is the point? then why here? Price. So अब वो कोशिश कर रहे हैं ना कि उसका कुछ हल निकले. कि see the look at it this way कि अगर मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ूंगा. अगर मुझे साइकोलॉजी की एग्जाम पास करनी है तो मैं उतना ही पढ़ूंगा, है ना? सो प्रॉब्लम यही आया है कि हम लोगों ने एग्जाम पे इतना ज्यादा जोर दे दिया है कि पीपल स्टडी ओनली दैट मच एंड ओनली फॉर दैट मच ऑफ टाइम. Okay, so this what they are offering 2 exams like one will be. कि आप एग्जाम का टेंशन मत लो, आप पढ़ो, एग्जाम का टेंशन मत लो. 20 क्वेश्चंस आते थे जस्ट एग्जाम के. हाँ. So that's the thing कि आप don't study for the exams, but focus on study, focus on research, focus on learning. That is the main criteria. तो जो हाई स्टेक्स वाला जो कंसेप्ट है, ऐसा है कि कोई एक सब्जेक्ट में इफ ही गेट्स फेल तो वही सब्जेक्ट को उसको वापस करना है कि पूरा उसको वापस देना पड़ेगा, कैसा है इसका कंसेप्ट? लुकिंग एट द फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक वो एक सब्जेक्ट का भी कर पाएंगे. आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम हियर, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा है कि यू कैन यूज द एग्जाम फॉर ये इम्प्रूविंग योर स्कोर्स. तो इम्प्रूव करने के लिए अगर यूज किया है तो ऑब्वियसली आपके जो स्कोर्स में से जो ज्यादा हाई है वो सिलेक्ट किया जाएगा. कि गलती से आपने अगर इम्प्रूव करने के लिए दिया एंड देन जो नया स्कोर आया वो उसमें स्कोर घट गया तो वो नया थोड़ी लेंगे. दे विल टेक द ओल्ड स्कोर जो हायर था. तो आई एम अज्यूमिंग कि उतना फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगा कि जो एक सब्जेक्ट आप देंगे तो देन उसका भी कंसिडर किया जाएगा. सब पहले ऐसा था या लाइक जब मध्य प्रदेश में जब मैं थी तब वहाँ कोई बच्चा लाइक मेरे से बड़े जो बच्चे थे उन लोगों का मैंने ऑब्जर्व किया कि वो अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तो उनको री एग्जाम का चांस दिया जाता था. लाइक जैसे हमारा रिजल्ट आ जाता है अप्रैल मई में, तो अप्रैल में अगर रिजल्ट आ जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में तो मई में उन लोगों की एग्जाम होती है और फिर से वो जुलाई में दूसरी, अगर वो पास हो जाते हैं सेकेंड चांस में तो उनको फिर नए मतलब क्लास में एंट्री मिल जाती थी. So I think इस बार now the attempts, number of attempts will be increased to 4 then according to that. तो वही जो मैम पूछ रहे हैं कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल अगर हो जाता है बच्चा तो उसको पूरे देना पड़ेगा या एक ही देना पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको मार्क्स कम है उसको देने के लिए उसे रीच ईयर वेस्ट नहीं होता है. ईयर नहीं वेस्ट होगा. तो वो लोग एग्जाम देके पास हो जाते हैं, ईयर वेस्ट नहीं होता. जो सब्जेक्ट There is no clarity, I think. There is
Yeah, too many people talking. I can see that there is not much clarity on this. Maybe they will clarify that later on. हाँ, so वही जो अभी एनसीएफ वगैरह बनेगा तो वो उसी के लिए उन्होंने ये सब पॉइंट्स एक्चुअली उन्होंने सजेशंस लिए हुए हैं, सब टीचर्स से सजेशंस लिए हैं, तो वो पॉइंट्स जब इम्प्लीमेंट होंगे तो हम लोगों को एनसीएफ मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क में वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे. So in that it will become more clear. बाकी कुछ पॉइंट्स है क्या? हेलो सर, और एक मेन होगा एंड एक वन फॉर ऑप्शनल है, ऑप्शनल है. On up to 2 occasions, all students will be allowed to take board exams on up to 2 occasions during any given school year. So again, any given school year मतलब वो भी हो गया कि ऐसा नहीं है कि आपको 9, 10 दोनों करके फिर 10th की बोर्ड एग्जाम देनी पड़ेगी. हाँ, एंड ये है ना, सी यहाँ अभी उन्होंने लिखा है 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड. सो ऑप्शनल ही है. Okay, I think that is clear. नेक्स्ट पॉइंट इज 4.38. इसमें है कि जो वार्षिक परीक्षा है, सेमेस्टर और जो मॉड्यूलर परीक्षाएं हैं, इनकी जो विषय सामग्री, इसमें जो भी कंटेंट, जो इतना सारा मटेरियल रहता है, उसको थोड़ा कम करके मतलब टेस्ट के आधार पर लिए जाएंगे और कोर्स खत्म होने के बाद ही उससे संबंधित टेस्ट लिया जाएगा, ताकि परीक्षाओं के जो दबाव है, मतलब परीक्षाओं का जो भी प्रेशर है उसको कम किया जा सके, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. मतलब जितना भी कोर्स है उसको टुकड़ों में बांटे जाएगा और तभी टेस्ट ले लिए जाएंगे ताकि उसका प्रेशर कम हो. क्योंकि ये पढ़ाई के प्रेशर की वजह से बच्चे बहुत कुछ गलत कर लेते हैं, जिसका एक एग्जांपल बताना चाहूंगी. सर विल डिस्क्राइब. Okay, so this is something that happened around 3 years back, and just because वो 3 साल पहले बात हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि recent times में ऐसी चीजें घटना नहीं हुई है. Recently भी एक दो ऐसे incidents हुए हैं, maybe not as brutal but then still quite horrible. तो दिल्ली की एक स्कूल है, I think quite a few of you probably know this, but फिर भी just to bring it to your attention or you know remind you कि क्या हुआ था exactly. तो दिल्ली की एक स्कूल थी where there was a child who was found with his neck slashed, मतलब गला कटा हुआ था, and टॉयलेट में ढूंढा पाया गया था, and they found कि किसने किया होगा, तो they got hold of the bus person. ये blame हो गया था कि you know the बस ड्राइवर ने शायद किया था वगैरह ऐसा. बट देन दे डिड अ डीपर इन्वेस्टिगेशन एंड दे फाउंड आउट कि किसी स्टूडेंट ने ही किया था, क्योंकि उनके क्लास में ये डिस्कशन चल रहा था कि अगर एग्जाम का बहुत प्रेशर है एंड कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है, तो एक किसी बच्चे का हम लोग कत्ल कर देते हैं एंड उसके डेथ की वजह से एग्जाम्स विल बी कैंसल्ड. So that is why they did that. One of the children, one of the seniors, they took got hold of a fourth standard child and toilet में उसे लेके गए and he cut his throat. So मतलब this is the length up to which insensitivity and the fear of exams can go. कि लोग 9th 10th का बच्चा कुछ ऐसा कर सकता है सिर्फ एग्जाम के वजह से, एंड दिस स्टफ लाइक दिस इज कमिंग इन द न्यूज़ nowadays. So is there anything more to add in this point? No. ये हो गया है.
ओके, तो या सो इसमें भी जो पहले जो हम लोग का डिस्कशन चल रहा था उसी का यहाँ पर कंटिन्यूएशन है कि बोर्ड एग्जाम्स का भी जो कंसेप्ट है वो ओवर टाइम बदलते रहेगा। तो यहाँ लिखा है बोर्ड्स में ओवर टाइम आल्सो डेवलप फर्दर वायबल मॉडल्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन दैट रिड्यूस प्रेशर। तो ये किस तरह के मॉडल्स है कि अगर हम लोगों ने अभी के लिए 2 बोर्ड एग्जाम इंट्रोड्यूस की, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम एंड देन सेकंड वन इज ऑप्शनल, तो आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम 2 बार नहीं 4 बार हो। ऐसा भी हो सकता है कि हर चैप्टर के बाद में बोर्ड एग्जाम हो। एंड धीरे धीरे वो जो कंसेप्ट है बोर्ड एग्जाम का कि अरे साल में एक बार होती है एंड हम लोग को कोई भी हालत में पास करना है, नहीं तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, दैट कंसेप्ट विल डिसअपियर। क्योंकि इमेजिन हर चैप्टर के बाद में अगर बोर्ड एग्जाम है तो देन हाउ विल द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, हाउ विल वी फील अबाउट इट, तो वो फियर निकल जाएगा। सो जो वो कंसेप्ट है कि आपको एग्जाम पास होने के लिए या फिर आगे के लाइफ के लिए पास होना है एग्जाम, तो दैट थिंग विल गो अवे। नाउ again the purpose of the exam will be to guide learning and to enhance learning. What can we do for this? मतलब लोअर स्टडीज के लिए क्या कर सकते हैं अपन लोग? ये जो फियर है, ये फियर तो इट्स नॉट लाइक कि 10th में ही आता है, फियर तो बहुत बार आता है एग्जाम्स में। So अगर 10th में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो it becomes the school's duty. See कहीं पे भी okay, the entire education system, NCF से लेके NEP से लेके everything, including the old NEP and including the old NCF, कहीं मेंशन नहीं होता है कि एग्जाम्स कंपलसरी है। ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ एफिलिएटेड स्कूल्स जो सिर्फ 8th 9th 10th या 7th से एग्जाम शुरू करते हैं, 7वीं तक के एग्जाम होती ही नहीं है उन स्कूल्स में। तो क्या होता है फिर वहां पे? जैसे क्या करते हैं फिर वहां पे? जैसे अपना पे आपका कुछ पैटर्न हो गया है सिखाने का, तो हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द किड्स नॉलेज? कैसे समझेगा वो? हाँ, तो वहां पर जो रियल जो सीसीई का उनका कंसेप्ट था वो रियलिटी में कैसे वर्क करता है। एक तो जो कंसेप्ट उन्होंने निकाला था दैट फेल्ड बिकॉज इट वाज नॉट वेरी वेल कंसीव्ड, नॉट वेरी वेल क्रिएटेड। मगर जो एक्चुअल वर्किंग है सीसीए का वो कुछ ऐसा होता है कि यू आर ऑब्जर्विंग द चाइल्ड ऑन अ डेली बेसिस। जो लर्निंग होती है, जो आंखों में चमक होती है बच्चों में, दैट इज द आइडेंटिफाइंग फैक्टर कि बच्चा कितना और जानने की कोशिश कर रहा है एंड हाउ इज दैट नॉलेज बीइंग अप्लाइड। तो एप्लीकेशन के लिए देयर इज नो टेस्ट, आप एग्जाम्स में वो इवैल्यूएट कर ही नहीं पाते हैं। एप्लीकेशंस के लिए आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स हो गया, फॉर एग्जांपल सोशल वर्क हो गया, कुछ इन्वेंट कर रहा है, कोई डिस्कवर कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स अगर हम स्कूल लेवल पे ही अगर एनकरेज करना शुरू कर देते हैं तो देन अपने आप यू नो कि लर्निंग इज गोइंग ऑन। बिकॉज इन निवम आई गेस आप लोग पहले भी एग्जाम्स के ऊपर कभी इतना फोकस नहीं करे, दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में जो डर या प्रेशर जो एग्जाम का देते हैं वो पेरेंट्स लोगों की तरफ से ही होता है, बिकॉज हम लोग बचपन से वैसे ही स्टडी करते आए। तो अब जैसे एग्जाम्स आती है तो वी टेल के प्रतीश एग्जाम है, चलो चलो जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, पूरा आपको बिना देख के लिखना है, जो भी एक थोड़ा सा रहता है। तो वो एक प्रेशर तो डेवलप हो रहा है अभी फिलहाल, वो कम लेवल पे रहेगा, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है फिर वो। सो यही है कि मोस्ट अभी ऑफ वो दिस सब कुछ वर्चुअली हो रहा है इसके लिए। अगर वो वर्चुअल नहीं होता था तो दैट विल बी इन स्कूल, तो वो हम लोग इतना बॉदर भी नहीं करते कि वो कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है। इसमें आई विल शेयर अ फ्यू थिंग्स विद यू ऑल। जो मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ व्हिच इज टुडे इंडियाज नंबर 1 स्कूल, सह्याद्री स्कूल करके जो है, दिस यू कैन सर्च फॉर इट, उसके रिव्यूज वगैरह के लिए।
वहां पर 7th स्टैंडर्ड तक के एग्जाम होती ही नहीं थी। 8th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक मराठी की एग्जाम या फिर जो भी आपका थर्ड लैंग्वेज है उसकी एग्जाम होती थी, बिकॉज वो लैंग्वेज फिर नेक्स्ट ईयर से निकल जाती थी। तो दैट इज व्हाई एक उसकी एग्जाम होती थी। देन 8th 9th 10th में यू हैड एग्जाम्स। 8th बिकॉज आपको एग्जाम का थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस रहना चाहिए सो दैट यू कैन फेस 9th and 10th. So this is one. The other thing I'd like to share with you is कि जैसा मैंने बोला कि किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी एजुकेशन ऑफिस के डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं है कि आपको एग्जाम्स लेना है आपके बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए। इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन, दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको अपने बच्चे को इवेल्युएट करना है कि कितना आता है, क्या आता है, तो अ बेटर and a more accurate way to understand, जो उन्होंने पहले भी मेंशन किया है कि जो रिपोर्ट कार्ड में आएगा, that will be something that is useful for all three, children, parents and teachers. So the best way to evaluate someone or something is through questionnaires. So ये जो questionnaires है, in fact even in now corporates and all, the toughest exam that you can face at industrial level today is referred to as something called the caliper test. CALIPER, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो कैलिपर टेस्ट से जो इवेल्युएट होता है वो उससे सब कुछ इवेल्युएट हो जाता है, नॉलेज से लेके द एबिलिटी टू गेन न्यू नॉलेज से लेके द एबिलिटी टू अडैप्ट your personality traits, सब कुछ, everything is evaluated in that, because वो एग्जाम वैसी रहती है कि आपको उसके आंसर्स उस हिसाब से देने पड़ेंगे। इट इज नॉट ये नॉलेज बेस्ड। It is very important that pressure नहीं होना चाहिए, but at the same time जिस एज में जो skill development होना चाहिए, like for example the neatness, the accuracy, the judgment to write this number of lines for a particular answer, that also has to be developed. So we need not judge the child, but at least we come to know how much they have understood, how much they can, how much output they can give when a particular question is asked. So that's why assessments are necessary, but then it's not necessary to judge them through these assessments. Very simple example of what is a formative assessment and what is a summative assessment. Summative assessment कुछ ऐसा रहेगा कि if I ask the child to write down a summary of Mohammad Ghori's invasion in India, तो उसमें उसे ईयर लिखना पड़ेगा, उसे कौन से कहां से घुसा था ये सब लिखना पड़ेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा रहेगा? इफ आई पुट अ क्वेश्चन दैट सेज कि व्हाट पोजीशन वुड यू बी इन कि आपको किसी कंट्री को इन्वेड करना पड़े, आपके साथ में या आपके लोग के साथ में, योर सब्जेक्ट्स, योर पब्लिक, उनके साथ में ऐसा क्या हो सकता है जिसके वजह से यू थिंक कि इन्वेडिंग another country would be an okay and acceptable option. रिसोर्सेज के लिए डेस्परेशन हो गया, बाजू से अगर कोई अटैक कर रहा है। The reason why I'm sharing this with you is जो नेपाल के साथ में हो रहा है, the Nepali people are also trying to invade a little bit in India. Nobody would have thought that. किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि नेपाल के लोग इंडिया इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? So they found out कि उधर से चाइना उनकी टेरिटरी कम कर रहा है, तो लोग कहाँ जाएंगे? अगर चाइना उनका लैंड खा जा रहा है तो where will they go? India is the only country that they can enter. So that is why the Nepal people were invading India.
So all these things come under formative knowledge, because जब you are forced to think in a certain way, so then you realize a lot of things in the world, and जिसकी वजह से जो आगे की calamities है वो avoid हो सकती है. Like all of us study के हिटलर ने इतने Jews मारे, वर्ल्ड वॉर में इतने लोग मारे गए, and Hitler did this and the British did that. ये सब डिस्कस होता है, बहुत डिस्कस होता है in world war studies and all that in textbooks, but then nobody tells you why. Nobody tells you why Hitler felt it necessary to build an army that could do such horrible things. हम लोग को ये पता ही नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई उसमें जर्मन्स को किस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया. They were a country like India. हम लोगों ने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है. Still for us it is an alien concept. हम लोग के साथ में ये हुआ है कि विंस्टन चर्चिल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, सेम वर्ल्ड वॉर जिसमें हिटलर ऐसे हरकतें कर रहा था, उसी वर्ल्ड वॉर में विंस्टन चर्चिल शिफ्ट फुल ग्रेन्स के उन्होंने शिपमेंट वहां से बंगाल साइड से मंगाए, एंड वो शिपमेंट क्यों मंगाए? एज अ बैकअप, कि अगर कहीं हम लोग के सोल्जर्स को कहीं लग गया तो देन वी विल यूटिलाइज इट देयर. बैकअप के लिए मंगाए, जिसके वजह से मोर देन व्हाट 6 मिलियन 6 million people, 6 million Indians died. Why? Because the British PM just wanted a backup of grains for his soldiers. That was also the most painful death by starvation. Yeah, they died of starvation. And not just that, वो जो shipment था grains का, वो किसी के काम नहीं आया क्योंकि वो पूरा सड़ गया था. Because उस टाइम पे तो preservation skills वगैरह उतने नहीं थे ना, तो वो grains पूरे सड़ गए थे, किसी के काम में नहीं आए. So what did 6 million Indians die for? And who was more cruel, Hitler या Winston Churchill? So all these things they need to think about. They need to have that maturity to understand. ठीक है, I'm not saying like first standard, second standard, but then 7वीं 8वीं तक तो उतनी maturity आनी चाहिए ना. वो नहीं आती है, इसलिए तो हम लोग को सारे रास्ते पे इतना कचरे दिखते रहता है. वो नहीं आती है इसलिए तो लोग ऐसे रॉन्ग साइड में गाड़ियां चलाते रहते हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. We don't even know about it. In our hunger to always keep wanting more, do you know air pollution के वजह से more than 12 lakh people die every year. हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से. क्यों? क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि हम लोग एसी चलाते हैं. 12 लाख सिर्फ एयर पोल्यूशन से हर साल लोग मरना, किसको बोलूं? So these are things that we need to know. This is why we need people who will think and will try to develop green technologies. This is why we need people to stop going into all these big fancy companies and start doing organic farming. ये जरूरी है. एंड ऐसा तो नहीं है कि इसमें पैसा कम है. We see the cost of organic products. पैसा उसमें भी कमा रहे हैं, मगर कोई सोचता ही नहीं है. So this is a step, a positive step in that direction. We have 2 minutes. 4.39 हम लोग complete कर सकते हैं. Yes. And then we'll open for questions again. Yes. तो 4.39 में है कि NCERT द्वारा और उनकी गाइडलाइंस में SCERT, बोर्ड ऑफ असेसमेंट, NACSC और टीचर्स के साथ डिस्कस करके ऐसे दिशा निर्देश बनाए जाएंगे जिससे कि 2022-23 तक ये सारी चीजें जो आकलन की प्रणाली है नई वाली वो पूरी बदली जा सके और 22-23 तक वो लागू हो जाए. Guidelines. So this is I think pretty straightforward कि जो हम लोग सोच रहे थे कि वो लोग ऐसे ही नहीं decisions लेंगे, तो वही बोल रहे हैं कि they will take the decisions taking the view of all the major stakeholders. तो हाँ, so इस चीज के लिए it is very necessary कि जो गवर्नमेंट की जो साइट है
उसमें you all everybody should be very active. अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उसमें आते रहते हैं कि पेरेंट्स को व्हाट डू दे वांट इन देयर child's education future. They'll have people about they'll have views where you need to submit your opinions on what should be the employment scenario in the country. कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट अभी बहुत एक्टिव है ये सब इनपुट्स में. They read through everything, so we should help out, we should submit. So I think the points are enough for today, but if there are any questions we can take questions. No questions? Yes. All right, so thank you all for joining in for us. Shirisha ma'am, आपको कुछ ऐड करना है? No, sir, it doesn't seem like adding something. We have covered all the points. Okay. Basically, there is a lot of relaxation in the system, but at the same time, there is a lot of depth in whatever has been introduced, is going to be introduced. So the true meaning, the application part is given much more importance. So it's not that बिल्कुल freedom दे दिया इसका मतलब कुछ भी नहीं करेंगे. They will be doing things, but they will be doing much more meaningful things. So yeah. इसका I think one more example I can share with you that I faced in the university. Normally यही होता है कि हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो आफ्टर गिविंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली कॉलेज लेवल पे वी गो इनटू दैट माइंडसेट, वी गो इनटू दैट मेंटालिटी कि अरे एग्जाम तो पास हो गई, अब हम लोग कॉलेज में आ गए, हो गया. लाइक दैट इज द फुल स्टॉप, दैट इज द टारगेट. कि कॉलेज में एंट्री लेना वाज द इंटेंशन, वाज द अल्टीमेट एम. अब अच्छे कॉलेज में घुस गए तो हो गया, काम हो गया. बट डे वन ऑफ यूनिवर्सिटी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड. जो हम लोगों की यूनिवर्सिटी में जो हम लोग नॉर्मल सुनते हैं ना कि कॉलेजेस में प्रोफेसर वगैरह, कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं होता. ये जो रैंकिंग होती है प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है. All professors outside university are not professors. So जो वहाँ की लेक्चरर थी, नहीं रीडर थी, मतलब she was going to become the professor. She happened to be a class teacher. Class teacher मतलब जो academic coordinator for first year MSc ऐसा. She walked into the class and day one पे she told us कि हम लोग का इंटीग्रेटेड कोर्स था, 12वीं के एग्जाम के बाद में इमीडिएटली एमएससी का कोर्स. तो डे वन पे हम लोगों को बोल दिया कि आप लोग कॉलेज में नहीं हो, यू आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो ये जो थॉट्स दैट यू हैव कि हम लोग गैदरिंग के समय बहुत मस्ती करेंगे और वेकेशन रहेगा कॉलेज का वगैरह, ऑल दिस डजंट अप्लाई टू यू. यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, you are supposed to work and you are supposed to study and you are supposed to do research that can contribute to the nation. Simple इसमें उन्होंने समझा दिया कि आपको कुछ वेकेशन वगैरह कुछ मिलने नहीं वाला है. This is going to be your life now. You have to live a life of research. मतलब बेसिकली वो बोलते हैं ना कि आज से आप सन्यासी हो. So that kind of a thing. So day one itself she made that clear. Okay, this is whatever must have happened. मगर आप अब यहाँ पे जो हो वही हो. So your life starts now. It doesn't end now. It starts now.
So that's it. Thank you very much. Thank you.